हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो है, एक नया डेवलपमेंट है एआई बीआरएफ ने, जो कि अभी तक ऐसा कोई कंप्लेंट टाइप का स्ट्रॉन्ग लेटर नहीं लिखे थे। फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ एआई बीआरएफ एक अच्छा सा लेटर, एक गुड एक्शन, एक अच्छा लेटर लिखे हैं किसको, डीएफएस को, अगेंस्ट एआई आईबीए, अगेंस्ट आईबीए, आईबीए का अगेंस्ट में। ये कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। एआईबीआरएफ ने आईबीए के अगेंस्ट में डीएफएस को कंप्लेंट किया है। फर्स्ट टाइम आई थिंक एक गुड स्टेप यही होना चाहिए। मेरे को लगता है उनका जो एआईबीए का यूएफबी का ऊपर जो डिपेंडेंसी था वो ख़त्म होने जा रहा है। वो पेंशनर्स के लिए अभी फाइट करना चाहते हैं, ऐसे लग रहा है। और ऐसा है तो अच्छा है, हम चाहते हैं आगे एआईबीआरएफ उसका जो जो गलती था उसको सुधारने का मौका है। पेंशनर्स के लिए फाइट करना चाहिए। तो चलिए वो लेटर में क्या लिखे डीएफएस को आईबीए के अगेंस्ट में, वो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए एआईबीआरएफ का सर्कुलर डेटेड 9/6/2026 एड्रेस टू द सेक्रेटरी डीएफएस दिल्ली। Respected sir, Indian Bank Association refusing to accept any accountability towards bank retirees and others। वो बोले इंडियन बैंक एसोसिएशन कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं towards bank retirees। We wish to draw your kind attention to matter of serious concern affecting more than 7 lakhs retirees, bank employees and their family across the country। For the 5 decades, the Indian Bank Association has been entrusted with the responsibility of negotiating, drafting, finalizing service condition of bank employees, including pension and other superannuation benefit. Since 1966, IBA has signed 12 bipartite settlement and several other industrial level agreement on behalf of public sector bank and participating प्राइवेट सेक्टर बैंक। सभी के लिए बाईपार्टिट सेटलमेंट बैंक के बिहाफ में आईबीए ने नेगोशिएट कर रहे हैं और साइन कर रहे हैं। इन दिस रिगार्ड वी इनवाइट योर अटेंशन टू डीएफएस लेटर डेटेड 20th May 2026 एड्रेस टू द चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑल नेशनलाइज्ड बैंक, ऑथराइजिंग आईबीए टू अंडरटेक negotiation and finalize the 13th bipartite settlement। This clearly demonstrates the confidence reposed by the government of India in IBA and the important public function discharged by it in matter affecting service condition, retirement benefit of bank employees and retirees। As a consequence of this responsibility, IBA exercise enormous influence and authority over the service condition of more than 7 lakhs serving employees and pensionaries and other retirement benefit of nearly 7 lakhs retirees। It also issue interpretation of settlement provision that directly affect the right and entitlement of employees and retirees in several legal proceedings involving service condition। IPA represents and defends the collective position of member banks before judicial forum। बैंक का जो भी केस होता है बैंक के तरफ से आईबीए फाइट करता है, जैसे कि एमसी सिंगला केस में, जहाँ की प्रोविज़न बैंक का प्रोविज़न है 35(1) के हिसाब से, बीपीआर 1995 के हिसाब से पेंशन ऑप्टेशन, लेकिन वो लोग उधर फॉल्स एफिडेविट सबमिट कर रहे हैं, उसको तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं। Further, we find that a substantial portion of IBA operational expenditure is funded by public sector bank। मैक्सिमम जो पैसा आता है IBA को पब्लिक सेक्टर बैंक से ही मिलता है, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन से मिलता है, जो कि गवर्नमेंट ओन्ड बाय गवर्नमेंट। Despite exercising such extensive authority and influence, IBA has consistently maintained that it bears no accountability towards employees, retirees or their representative organization। ये सब काम करने के बावजूद भी आईबीए बोलता है उनका कोई उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी कुछ नहीं है। जो भी वो कर रहे हैं बैंक का बिहाफ में रिप्रेजेंट करके कर रहे हैं। इट
generally does not acknowledge or respond to communication received from retirees organization on important policy issue affecting retired employees. We understand that in several cases, electronic communication sent by retirees representatives are not being entertained. सही बात है, जितना भी हम लेटर लिखते हैं रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं आईबीए को, आईबीए उसका रेस्पॉन्ड नहीं करता है। और मेरे को लगता है ये जो लेटर भी वो डीएफएस को लिखे हैं वो भी रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा उनको, 100% उनको डीएफएस से भी रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, आईबीए से तो मिलता नहीं, जिसको कंप्लेन करने जा रहे हैं उससे भी रेस्पॉन्स मिलने का चांस नहीं है। Our concern has been further strengthened by the following disclaimer displayed on the official website of IBA। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट में एक नोटिस साफ करके रखा है आईबीए ने। क्या लिखा है उसमें? इंडियन बैंक एसोसिएशन हैज़ बीन रिसीविंग ए नंबर ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम बैंक कस्टमर, मेंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, एम्प्लॉयज एंड बैंक रिटायरीज conveying their grievances against bank, making inquiries, seeking information about banks. IBA wishes to clarify in this regard that IBA is an association of banks and other entities in the banking ecosystem in India, catering to its members. Neither a government entity nor a regulatory authority, IBA, not amenable to writ jurisdiction of courts, नॉट सब्जेक्ट टू दी आरटीआई एक्ट, किसी में भी वो आते नहीं हैं, खाली बैंक के बिहाफ से रिप्रेजेंट करके उधर साइन करते हैं। इसलिए वो बोलते हैं जो भी कंप्लेंट जिसी का है डायरेक्ट आप बैंक को कीजिए, आईबीए को मत कीजिए। द अबव स्टैंड ऑफ आईबीए रेजेस ए फंडामेंटल इशू, एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज ऑथराइज टू negotiate and determine service condition and retirement benefit affecting lakhs of employees and retirees, and which act on behalf of public sector banks and under the mandate of the Government of India in industry level negotiation, cannot claim complete immunity from accountability to the very stakeholder whose interests are directly affected by its decision. उसके बाद लिखे वी रेस्पेक्टफुली सबमिट दैट principle of transparency, fairness, natural justice, and participative governance requires that retirees and their representative organization should have an opportunity to place their views before IBA and received reasoned response on issue affecting their welfare। वो चाहते हैं कि रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया जाए, उनका व्यूज़ भी लिया जाए, उनको भी कंसल्ट किया जाए। The present position affecting deprived retirees of a meaningful platform for dialogue on matters that directly concern their pension, medical benefit, and other retirement-related issues. Such an approach is inconsistent with the expectation of accountability from institutions exercising significant public function. With respectful regards, yours sincerely, Mr. S.C. Jain, General Secretary, CC to the Chairman, Indian Bank Association, Mumbai, the General Secretary, 9th जो यूनियन है सभी को भेजा गया है। और ये जो लेटर गया है इसका क्या रेस्पॉन्स मिलेगा गॉड नोज, मुझे नहीं लगता है उसका कोई रेस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन कोशिश तो अच्छा है, यही करना चाहिए इनको। और अगर इसमें नहीं काम होता है तो कोर्ट में जाना चाहिए। बार बार इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो एमसी सिंगला केस में तो ठीक है एआईबी पार्क ने है, लेकिन स्पेशल अलाउंसेस केस में एक्चुअली एआईबीआरएफ को इंप्लीडर बन के केस को स्पीड अप कराना ज़रूरी है। तो उनका जो रेपुटेशन है उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा अगर वो स्पेशल अलाउंसेस केस को टेकअप करेंगे और उसको सही दिशा में आगे ले जाएंगे। जो ऐसे कि तो अभी बार बार वीकली लिस्ट में आता है लेकिन डेली लिस्ट में उसको जगह नहीं मिलता है, क्योंकि वो 200 के ऊपर पार नंबर मिलता है। तो इसलिए एक अर्ली हियरिंग के लिए पिटिशन डालना चाहिए एआईबीआरएफ को सुप्रीम कोर्ट में। तो चलिए ये था आज का वीडियो, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।